security cooperation and economic cooperations as the two wheels of the bike. ہمیں لفظوں کے ہیر پھیر سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے یا ہمیں مکمل تصویر کو بھلا کر اپنے دو طرفہ تعلقات کو محض منصوبوں کے اعداد و شمار کی عینک سے نہیں پرکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہے کہ اس سال پہلی بار 100 ٹن سے زیادہ چیری برآمد کی گئی ہے، لیکن اس کی حیثیت سمندر میں صرف ایک قطرے کی طرح ہے۔ ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام شیاؤچی ہے۔ میں ایک بائیونک انسان نما روبوٹ ہوں۔ کیا آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ سن 2022 کے اختتام تک سی پیک میں چین کی براہ راست سرمایہ کاری 25 ارب 40 کروڑ امریکی ڈالر تک پہنچی، جس کے ذریعے پاکستان کو 1 لاکھ سے زیادہ براہ راست اور 12 لاکھ سے زیادہ بالواسطہ ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں۔ مستقبل میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون میں کن پہلوؤں پر توجہ دی جائے گی؟ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ It's brought by the high tech. حال ہی میں چین کو پاکستانی مصنوعات کی برآمدات میں نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ 5000 دودھ دینے والی بھینسوں کے ایمبریوز کی پہلی کھیپ چین کے گوانسی علاقے میں پہنچی۔ کسٹم کلیئرنس اور معائنہ کے بعد بھینسوں کی افزائش اور پیداوار شروع ہو جائے گی۔ دوسری طرف 5.4 ٹن پاکستانی چیری سے لدا ٹرک ہونگجراب پر کسٹم قرنطینہ سے گزرا۔ یہ چیری چینی شہر شنگھائی کے لیے روانہ کی گئی اور جلد ہی صارفین کے سامنے پہنچائی گئی۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 2022 میں چین اور پاکستان نے فائٹو سینیٹری معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستانی تازہ چیری چینی مارکیٹ میں داخل ہو سکے گی۔ معاہدے کے بعد پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ DPP نے کوالیفائنگ آرچرڈ آپریٹرز کو جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز آف چائنا GACC کے ساتھ رجسٹریشن میں فوری مدد فراہم کی۔ پاکستانی چیری دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے۔ جب یہ مکمل طور پر پک جاتی ہے تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، جو کافی متاثر کن ہے۔ فی الحال مارکیٹ میں چینی صارفین صرف اس رنگ اور ظاہری شکل کو پہچانتے اور سراہتے ہیں۔ پاکستانی چیری اتنی اچھی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں دن اور رات کے درمیان درجہ حرارت میں بڑے فرق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور چیری کو تیز سورج کی روشنی ملتی ہے، جس سے اس کے پکنے میں تیزی آتی ہے۔ اس وقت پاکستانی چیری زیادہ تر ملکی اور غیر ملکی چیری کی نسبت عام طور پر 10 دن سے لے کر 2 ہفتے پہلے ہی مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ ٹائمنگ کا یہ فرق ملکی مارکیٹ میں پاکستانی چیری کے لیے منافع بخش موقع پیدا کرتا ہے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسپیشل پروجیکٹس ڈویژن کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں چیری کی کاشت کا رقبہ تقریباً 2500 ہیکٹر پر محیط ہے، جس سے تقریباً 6000 ٹن چیری پیدا ہوتی ہے۔ کاشت کے اہم علاقوں میں بلوچستان اور گلگت بلتستان شامل ہیں۔ اگائی جانے والی اقسام میں بنگ، رینیئر، لیپنز اور ٹولر شامل ہیں۔ پاکستانی چیری عام طور پر چین میں مقامی طور پر اگائی جانے والی چیری کے مقابلے میں 10 سے 15 دن پہلے پک جاتی ہے، جس سے انہیں مارکیٹ میں شاندار مسابقتی برتری حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہے کہ اس سال پہلی بار 100 ٹن سے زیادہ چیری برآمد کی گئی ہے، لیکن اس کی حیثیت سمندر میں صرف ایک قطرے کی طرح ہے۔ ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تجارتی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ متوازن اور پائیدار ہو، جو پاکستان کی پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو مزید کامیابیاں حاصل ہوں گی، زیادہ برآمدات اور مزید سرمایہ کاری ہوگی، اور ہمیں پورا یقین ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کے بغیر شاید ہماری تجارت کو متوازن کرنا مشکل ہوگا۔
चीन पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मुताबिक म्यार पर पूरा उतरने वाली पाकिस्तानी चेरी चीन को बरामद होने पर 0 टैरिफ से फायदा उठा सकती है। इसके अलावा चीन की सरहद से मुत्तसिल पाकिस्तान के जुग्राफियाई फायदे के बायस सोस्त बंदरगाह के जरिए चीन पाकिस्तान शाहराह के रास्ते नक्लो हमल आसान और मौसर है। यहाँ पर मोस्टली आप ये समझे कि 80% तक ऑर्गेनिक पैदावार आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइज़र स्प्रेज वगैरह का बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। तो आजकल दुनिया जो है एक ऑर्गेनिक तरफ आ रही है, तो क्यों ना इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करें, पूरी दुनिया में इसको रोशनास कराएं, इसको इंट्रोड्यूस कराएं। चेरी फ्रूट फ्लाइज जैसे मसाइल को 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी से ट्रीट करके हल किया जा सकता है। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोसेसिंग के अमल में चेरी को धोए जाने के साथ साथ स्टोर किया जाना चाहिए और इसकी दर्जा बंदी की जानी चाहिए। खराब चेरी को अलग कर देना चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो कीड़े मकोड़ों, खराब चेरी के दानों, पौधों के मलबे जैसे शाखों, पत्तों, जड़ों और मिट्टी से पाक हैं। इसके बाद चेरी को मुतादिद बीमारियों से महफूज रखने के लिए जरासीम कश महलूल में धोया जाता है। चीनी मार्केट में चेरी और दीगर फलों के बाआसान दाखिले के लिए चीन में खुंजरा पास कस्टम्स का महकमा वन स्टॉप कंसल्टेशन सर्विसेज पेश करता है, जिसमें डिक्लेरेशन और फाइलिंग की तफसीलात, दस्तावेजात की तैयारी, पोर्ट क्वारंटाइन, सामान की हैंडलिंग और सर्टिफिकेट जारी करने के ज़वाबित शामिल हैं, जो सामान की फौरी और महफूज क्लियरेंस को यकीनी बनाते हैं। The Prime Minister of Pakistan was also here. यही वजह है कि हमारी तवज्जो सरमायाकारी पर मरकूज है, जिससे बरामदात में इजाफा होता है। टैरिफ की पाबंदियों और नॉन टैरिफ पाबंदियों जैसी रुकावटों को दूर करके बरामदात में इजाफा होता है। हम दोबारा FDA पर काम कर रहे हैं। ये मुश्तरका बयान का हिस्सा है। हमने पाकिस्तान और चीन दोनों की वजारतों के दरमियान एक मुश्तरका स्टडी शुरू की है ताकि आगे बढ़ने का एक वाज़े और एक मुश्तरका रास्ता तलाश किया जा सके, जिसके ज़रिए इनमें से हर एक दूसरे को मतलूबा मकासद तक पहुँचने में मदद दे सके और इस तरह के बहुत से दीगर इक़दामात कर सके। तफसीलात के मुताबिक चीन को पाकिस्तानी चेरी की बरामद जून के आखिर तक जारी रहेगी, जिसका तखमीना शुदा मजमूई हुजम 260 टन है। 2001 से 2022 तक चीन की ज़री तिजारत का हुजम 12 गुना बढ़कर 27.45 अरब डॉलर से 334.32 अरब डॉलर हो गया, जिसकी औसत सालाना शरह नमू 12.6% रही, जो इसी अरसे के दौरान आलमी औसत शरह नमू 6.7% से ज्यादा है। 2023 में आलमी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद चीन की मजमूई ज़री तिजारत का हुजम 333 अरब डॉलर की तारीखी बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के साथ ये ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के पास आलमी औसत के मुकाबले में काबिल काश्त ज़मीन की औसत मिकदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे लिए दस्तयाब वसाइल को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। हम खुराक और ज़राअत के शोबे में ठोस इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन अपनी लेबर फोर्स की पैदावारी सलाहियत को हकीकी मानों में बढ़ाने के लिए हमें चीनी टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और महारत की ज़रूरत है। चीनी मालूमात और बेहतरीन तरीक़ों से फ़ायदा उठाकर हम अपनी मजमूई पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ खुद कफ़ालत को यकीनी बना सकते हैं, बल्कि चीन और दुनिया भर की मार्केटों को बरामद करने के लिए सरप्लस भी पैदा कर सकते हैं। मस्नूई ज़हानत और वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए आज हमारे मेज़बान आपको आला टेक्नोलॉजी की दिलकशी और दिलिस्मात का तजर्बा करने ले जाएंगे। दुनिया भर में साइंसी और तकनीकी जिद्दत के तबादले और ताउन के नेशनल वेन्यू के तौर पर इस साल चुंगवासुन फोरम कौन सी नई जदीद टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ कराएगा और ये लोगों के लिए क्या नए तजर्बात लाएगा।
2024 चुंगवा सुन फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस अपनी टेक्नोलॉजी पर मबनी कॉन्फ्रेंस की हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर बेहतर बनाएगी, जिसमें इंटेलिजेंट, क्लाउड बेस्ड और ग्रीन के 3 अहम अनासिर पर जोर बरकरार रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंट खुसूसियात के एतबार से इस साल का फोरम AIGC मॉडल्स के साथ मरबूत मुख्तलिफ एप्लीकेशन सिनेरियोज और डिवाइसेस को नुमायां करेगा। इसके अलावा ये फोरम बड़े AI मॉडल्स और AIGC मसनूआत के साथ मुंसलिक इंसानी बायोनिक रिबोट्स जिनको ज़ाती तौर पर ट्राई किया जा सकता है को ख़ास तौर पर पेश करेगा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम श्याउची है। मैं एक बायोनिक इंसान नुमा रोबोट हूँ। क्या आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं? बायोनिक रोबोट्स के अलावा रिपोर्टर्स ने मुतादिद ज़रूरियात पूरी करने के लिए मशहूर इंसान नुमा रोबोट्स का भी मुशाहिदा किया। 这是我们公司，这是第 ये हमारी कंपनी की 5th जनरेशन की मसनूआत हैं जिसे स्मॉल मैक्स का नाम दिया गया है। फ़िलहाल ये 1.65 मीटर लंबा है और इसका वज़न 55 किलोग्राम है। ये 100 किलोग्राम तक वज़न उठा सकता है। इसके अलावा ये 50 किलोग्राम वज़न उठाकर छलांग भी लगा सकता है। इसके चलने की मौजूदा रफ्तार तकरीबन 5000 मीटर फी घंटा है। रोबोट में मजमूई तौर पर 54 डिग्री फ्रीडम पाई जाती है। गेयर रिड्यूसर्स, मोटर्स, इनकोडर्स और खुद तैयार किए हैं। ये पेचीदा इलाकों में भी जा सकता है और बैरूनी खलल के बावजूद तवाज़ुन बरकरार रख सकता है। माजी में नाकिस टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान नुमा रोबोट्स सिर्फ मखसूस खिदमात ही फराहम कर सकते थे। पेचीदा सूरत हाल को संभालने के लिए शौरी सलाहियतों की कमी थी, जिसने इनके इस्तेमाल को महदूद कर रखा था। अब इन रोबोट्स की नुमाया खुसूसियत मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ काम करने की सलाहियत है। 让它上肢去坐稳在这个流水线的这个 अगर 台 ये 子上 एक मुकर्ररा असम्बली लाइन पर काम करता है तो हम असम्बली लाइन प्लेटफॉर्म पर इसके ऊपर वाले आज़ा को मुस्तहकम कर सकते हैं, जिससे अखराजात में मज़ीद कमी आ सकती है। अगर ज़रूरी हो तो इसे पहिए भी लगा सकते हैं। रोबोट्स के साथ साथ इस फोरम में कई जदीद टेक्नोलॉजीज़ भी शामिल थीं। मिसाल के तौर पर बई नाउ 2 इस साल की चुंगवा सुन फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया था और इसने फौरी तौर पर ऑडियंस को अपनी तरफ मतवज्जे किया था। 然后从上游电极采集到的信号 इस बंदर की मिसाल लेते हैं। इसके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। जब ये इस हरकत करते हुए नुक्ते को रोकना चाहता है तो ये दिमागी सिग्नल्स की मदद से ग्रीन कर्सर को कंट्रोल कर सकता है। डिवाइस का मुस्तकबिल में इस्तेमाल माजूर मरीजों की मदद करना है। ये टांगों और जिस्म के निचले हिस्से के फालिज से मुतासरा लोगों को बैरूनी आलात को कंट्रोल करने के लिए हम पल्ला ब्रेन मशीन इंटरफेस तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी खुद मुख्तारी को दोबारा हासिल करने में मदद देता है। एरोस्पेस से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक पूरा चुंगवा सुन फोरम ऐसी टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है जो दुनिया को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। VS हीरो न्यूरोवेस्कुलर इंटरवेंशन सर्जिकल रोबोट फ़िलहाल चीन में मार्केट के लिए मंजूर शुदा वाहिद रोबोट है। डॉक्टर इस सर्जिकल रोबोट को कंट्रोल कंसोल की मदद से ऑपरेटिंग रूम में मरीज़ों के रिमोट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले ही 300 से ज़ायद केसेस में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके अहम फ़ायद में बिल्कुल ठीक होना, डॉक्टर्स के लिए कम ताबकारी का हामिल होना, कम ताख़ीर और कंट्रोल कंसोल के साथ फ़ौरी वाकफ़ियत होना शामिल है। ये मरीज़ों के लिए तरीक़ाकार को ज़्यादा दुरुस्त और महफूज बनाता है। इस इक्विपमेंट और 5G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बीजिंग के डॉक्टर पाकिस्तान में मरीज़ों की सर्जरी कर सकते हैं, जो रिमोट मेडिकल इंटरवेंशन की जदीद सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। मुस्तकबिल में रोबोट तिब्बी वसाइल की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने से बीजिंग में माहिरीन मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ अस्पतालों में मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। ये शराकत दारी जंग और दीगर आफात के दौरान ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। फोरम के ग्रीन पहलू पर बात करें तो
चुंगवासुन इंटरनेशनल इनोवेशन सेंटर ग्रीन टेक्नोलॉजीज से भरा हुआ है। मिसाल के तौर पर इस सेंटर के आसपास के इलाके बारिश के पानी के अखराज को महदूद करने के लिए स्पंज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिसाइकल शुदा बारिश के पानी को आबपाशी और सड़क की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर की छत में शमसी फोटोवोल्टिक सिस्टम है जो शफाफ पॉइंट शेप्ड कर्व पीवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, मसनूई रोशनी की ज़रूरत को दूर करता है और सेंटर को रोशन करने के लिए कुदरती रोशनी पर इन्हिसार करता है। चुंगवासुन फोरम ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत 40 ममालिक और खित्तों से 6000 से ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ को इकट्ठा किया है। इसने एक आलमी टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग इवेंट बनाने की अपनी जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर 100 नई टेक्नोलॉजीज़ और अशिया के साथ साथ 100 इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स की फहरिस्तें तैयार की हैं, जहां दुनिया भर में जदीद टेक्नोलॉजीज़ की खरीदो फरोख्त की जा सकती है। ये नंबर्स महज अदादोशुमार लग सकते हैं, लेकिन ये दुनिया को तब्दील करने की सलाहियत के साथ साथ हैरत अंगेज तकनीकी तरक्की की नुमाइंदगी करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।